I ask this to you again. Why? Why are you doing this to us, to yourself, and to the whole country? Why? Reconsider. No, seriously, reconsider. See, let me go home. Enjoy some time with family. See, they are all waiting for me, and I think we talk business later. Okay, describe it. Describe it. That Tokyo 6 7s on the clock, 6 seconds, penalty corner. 44 seconds on the clock, penalty corner. 38 seconds on the clock, penalty corner. Describe it. See, it's this is what happens when one team is desperate to get a goal. They come like anything. They try to attack you with more energy. And being a defender, I think most of the times sometimes we get pressure or we commit easy mistakes. So that's how we give away easy PCs. But I think the players had that confidence that even if we consider PC, we are there to save it. And the defense done a wonderful job throughout this tournament. I think more than 40 or 45 pieces or 50 pieces we consider throughout this tournament. And we consider the less goals. So we were really confident about that. But still, I believe in something. It says that the God has a plan for me. And that 6 seconds and this 38 seconds, it's for me to show my face to the country, to my country people for the last time. You were there 1 hour before. You spoke to the goalpost. You were telling us about speaking to the goalpost. Tell my viewers. It's about my time. I call it like me time. When I stepped on the field, I walked into the center. I just imagined that this is going to be my last one. Then I went back. I sat on the goalpost, and I was just imagining everything. The day I joined my GV Raja Sports School, I cried when my dad left me. I was crying throughout almost 3 or 4 months. Then I started to play hockey. I tried all the other games before, but I started to play hockey. The way I got my first pad, the way I played for my state first. Then I got into the national camp. First incident, first international, the losses, the wins. So it's been through me just like that. And then I said, Sri, it's the time to wake up. One last ride, and what a wonderful one. Last question. Back-to-back medals. I mean, 1928 to 64 is long back. 80 is long back. I was born in 76, you some years later. None of us had seen those medals. This generation will see PR Srijesh and pick up that hockey stick. That's why you are my hero. Now tell me. See, this is what being a player I can do to the young generations. Be a star for them. Be a realistic star. Show them what we can and tell them how we achieved it. So now the world of social media, people always follows. It's called closely following it. I think if somebody comes to me, I say, "Kid, I got 2 medals." And I worked really hard. It took me 24 years of hard work to get that 2 medals. But a lot of youngsters who grabbed it in their first chance. 2 guys, 2 Olympics, 2 medals. But for me, my journey was different. So if you don't get in the first chance, don't be sad. Just keep faith, work hard, trust your process. At the end, you will get the medal. Many congratulations again. Well done. Thank you. 2 very special people. This man is a favorite and he knows it. मैं बैंगलोर गया था तभी इन्होंने प्रॉमिस किया था. भोलानाथ जी ने तो अभी खबर फोड़ दिया है अबाउट श्रीजेश. पहले कैप्टन 10 गोल, दोबारा मेडल. टोक्यो 3-1 डाउन जर्मनी. अभी दोबारा आपने करके दिखाया 1-0. बताओ बॉस. ये हमारे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है क्योंकि ये हॉकी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम ये मेडल जीतें और हॉकी को दोबारा से वो प्यार मिले. और लास्ट टाइम हमने जो किया था और बैक टू बैक करना, ये हिस्ट्री है एक हिसाब से. एंड आई रियली वांट टू थैंक्स टू सर जो डे 1 से हमारे साथ खड़े हैं एंड हमें जो सपोर्ट मिला है हॉकी इंडिया से, साई से. सो आई थिंक वो बहुत हमारे लिए मायने रखता है. हर एक फैसिलिटीज़ की बात करूँ, ये मैं ऐसा नहीं कि हम जीते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, बट ये हकीकत है. जो पर्दे के पीछे वाली चीज़ें होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुँचती हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि जब आपकी फेडरेशन, आपकी साई और आपके साथ खड़ी है और आपको फैसिलिटी मिल रही है, आपको हर एक टूर्नामेंट और मैचेस मिल रहे हैं, आप आउट ऑफ इंडिया मैचेस खेलने जा रहे हो, वो चीज़ आपको हेल्प करती है. तो दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इनका. सर भोला जी ये बताओ, इसके बारे में सामने नहीं पूछ रहा हूँ, बट कैप्टन अलग प्रेशर होता है.
10 गोल दाग देना कैप्टन बनने के बाद, भुवनेश्वर में वो हार जाने के बाद इसके साथ मेरा 25 इंटरव्यू हुआ था, इसका सबसे खराब टाइम, और वहाँ से आज का हरमनप्रीत सिंह, बताइए। मेरे ख्याल से हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल मैं जब बना तो उसके बाद मैं इंडिया टीम का एक अपने जैसा पहलवान कैप्टन को ढूंढ रहा था, जो हर एक चीज़ से मजबूत हो, दिल से भी मजबूत हो, शरीर से भी मजबूत हो, दिमाग से भी मजबूत हो, और लड़ने की जिसमें क्षमता हो। और वो मुझे हरमन में दिखा था और मैंने इसको इंडिया टीम का कैप्टन बनाया। अब आज एक शानदार कैप्टनशिप निभाया, 10 गोल। भाई श्रीजेश के बारे में कुछ बताओ, आप लोग एक साथ इतना दिन, उसको मिस करेंगे। मैं तो अभी भी उसको बोल रहा था यार कैप्टन क्यों नहीं बता रहे, वापस ले लो। सर हम मिस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे दिल में रहेंगे, जो उनकी लिए रिस्पेक्ट है हमारे लिए। इन्होंने तो कहा जूनियर इंडियन टीम का हेड कोच बन रहे हैं, तो फिर अभी कहाँ है? तो फिर हमारे साथ में ही है सर, वो बेंगलोर में रहेंगे हमारे इर्द गिर्द रहेंगे, बट उनके लिए बिग सैल्यूट। सभी आपको मैं बता रहा हूँ, सभी खिलाड़ियों को पता है जी, सभी को मालूम है कि मैं उसको जूनियर इंडिया टीम का कोच बना रहा हूँ जी। ये आपको मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ। ये बिग सैल्यूट है उनके लिए, क्योंकि जितनी उनकी जर्नी रही है, जितना उनका सफ़र रहा है, आई थिंक वो इजी नहीं था। और इंडिया को इतने साल देना, इंडिया टीम को, हॉकी को इतने साल देना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। आई थिंक बिग सैल्यूट। इससे एक अपॉर्चुनिटी खुल जाता है हरमन। बाकी कई लोग अभी हरमनप्रीत सिंह बनने का कोशिश करेगा। एक बच्चा हॉकी स्टिक उठाएगा, क्रिकेट बैट उठाएगा, हॉकी स्टिक उठाएगा, बैडमिंटन रैकेट उठाएगा। हमारे यहाँ पे ओलंपिक स्पोर्ट, हरमनप्रीत सिंह एक कल्ट बन चुका है। मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि जितने बच्चे हमारे पास हैं वो ऊपर आएँ सर, और हम ये ना देखें कि कौन हमें बीट कर रहा है, कौन हमसे अच्छा आ रहा है। हम ये देखें कि इंडिया के लिए कौन अच्छा आ रहा है और हॉकी के लिए कौन अच्छा रहा है, वो हमारे लिए मायने रखता है। और जितना कंपटीशन इंडिया में रहेगा, जितने अच्छे प्लेयर आएंगे, तो सर इंडिया के लिए मेडल आएंगे। और वो ऐसा नहीं कि हमारी हार होगी, हम हार के भी अगर वो हमसे अच्छा करेंगे तो हमारे लिए उससे बड़ी जीत कोई हो नहीं सकती। बोला जी, आप लास्ट सवाल, ब्रॉन्ज मेडल बैक टू बैक, LA एशियन गेम्स सामने, ऊपर कलर चेंज, ये तो रहेंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड, इसको अभी छोड़ रहे ही नहीं हम लोग। ये अगले ओलंपिक तक इंडिया टीम के कैप्टन है। या बता रहे हो? ये अगले ओलंपिक तक इंडिया टीम के कैप्टन है और रहेंगे। आज 2 ब्रेकिंग न्यूज फोड़ दिया राज सिंह जी ने। हरमनप्रीत सिंह कैप्टन ऑफ इंडिया इन LA, PR श्रीजेश कोच ऑफ द इंडियन जूनियर हॉकी टीम। भोलानाथ सिंह जी, आपको भी मेडल मिलना चाहिए 2 अनाउंसमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। हरमन, लव यू बॉस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हमारे साथ अभी मौजूद है टोक्यो ओलंपिक्स मेडलिस्ट और अभी पेरिस ओलंपिक्स मेडलिस्ट ललित उपाध्याय। ललित, कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल फीलिंग्स, बैक टू बैक मेडल्स ओलंपिक्स में? देखिए, मैं तो बोलूँगा पूरे देश को इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग तो खेले हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब एज ए टीम आप 3 से 4 साल तक इंतजार करें ओलंपिक्स का और ओलंपिक्स में मेडल जीते और कंट्री को प्राउड कराएं और मेडल टैली में एक हॉकी का भी दिखाएं जो कि बैक टू बैक आए, तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आपका माइंडसेट एज ए टीम, आपने जो मेहनत किया है, कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आपने बहुत सेक्रीफाइस भी किया है, तो वो सिर्फ चीज़ें जब आपको मतलब मिलती हैं तो काफ़ी खुशी होती है। और लास्ट में ये बोलूँगा, जब कंट्री के लिए मेडल लेके जाते हैं तो फिर बात ही कुछ और होती है। वैसे सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन टोक्यो का मेडल भी स्पेशल है, पेरिस ओलंपिक्स का भी मेडल स्पेशल है। क्या डिफरेंस आप देखते हो और कौन सा थोड़ा सा स्पेशल है? देखिए, वो ये था कि वो ज़्यादा स्पेशल मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो बहुत सालों के बाद का बैरियर ब्रेक हुआ था टोक्यो का, और ये इसलिए ज़्यादा स्पेशल हो गया क्योंकि बैक टू बैक लाना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं पूरे मतलब इंडिया के जितने भी लोग सपोर्टर्स थे, जितने भी लोग वहाँ पे हम लोग को चीयर अप कर रहे थे, मैं उनको भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनका फेथ था, उनका बिलीव था कि इंडियन हॉकी टीम काफ़ी ऊपर आ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि हम कोचिंग स्टाफ और सबका धन्यवाद इसलिए करूँगा हूँ क्योंकि एक जो स्ट्रेटजी हमने तैयार की थी, आज पूरे यूरोपियंस के सामने अगर एशियन हॉकी से इंडिया इतना टॉप पे है तो कोई नहीं बोल सकता कि उन्होंने हम पे डोमिनेट किया है। चाहे वो ब्रिटेन से 10 प्लेयर से खेलना हो, चाहे जर्मनी से, चाहे बेल्जियम से, चाहे ये अभी इनसे खेलना हो, तो सबका बड़ा क्लोज मैच रहा है। तो बस इसीलिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। और वो इंडिया में सबको बैठे जितने भी लोग हॉकी में बिलीव रखते थे, पुरानी हॉकी देखते थे, और अब नई हॉकी की जो हिस्ट्री यहाँ से लिखी जा रही है, मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या बात आपने कही है। तो एक बात बताइए कि मैच सेमीफाइनल हार जाने के बाद क्या माहौल था टीम में, क्या, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद टीम फाइनल में पहुँचाएंगे। एक होता है कि चलो गोल्ड या सिल्वर चला गया, बट तो क्या माहौल था, फिर क्या डिस्कशन हुआ टीम के साथ? मैं पहले ये बताऊँगा कि सबको लग रहा था, हम लोगों को भी यही था कि हम फाइनल खेलेंगे, और इस बार सबका सपना माइंडसेट था गोल्ड लेके जाएंगे और मेडल का कलर चेंज करेंगे। अनफॉर्चुनेटली
ठीक है उस दिन हमारा दिन नहीं रहा, हमें चांसेस ज़्यादा मिले, सब कुछ होता है, वो भी टीम वर्ल्ड क्लास है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन पूरा नेक टू नेक मैचेस था, सबको पता है चीज़। हारने के बाद यही था कि हम लोग डिज़र्व करते थे, लेकिन हम लोगों में ये है कि हम लोगों को भूख अभी भी है मेडल लेके जाने की यहाँ से, और हमें ये टूर्नामेंट पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करना है, हम खाली हाथ नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ें बातें थी, सारे टीम मतलब बैठी मीटिंग की हम लोगों ने, कोचेज सब लोगों ने, कि नहीं हमारा माइंडसेट रहना चाहिए, सेट रहना चाहिए। मैं बार बार कोचिंग स्टाफ का इसलिए नाम ले रहा हूँ, सीनियर प्लेयरों का इसलिए नाम ले रहा हूँ, हरमन का इसलिए नाम ले रहा हूँ, क्योंकि लीडरशिप इसी को बोलते हैं। आपको फ्रंट पे आना पड़ता है, एक दिखाना पड़ता है कि नहीं यार वो आपको माइंड चेंज करना पड़ेगा, जो हो गया उसको भूलना आसान नहीं होता है, लेकिन उसको बोलिए व्हाट इज़ नेक्स्ट की मेंटालिटी को डालिए और कल जो है फ्रेश माइंड से निकलिए। एक आखिरी सवाल, आपकी इस ओलंपिक की फेवरेट विक्ट्री कौन सी होगी? आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ग्रेट ब्रिटेन को हराया, काफ़ी अच्छे न्यूजीलैंड सबको हराया। देखिए हमें खुशी इस बात की कि ये सब बातें मेरे से ज़्यादा आप लोग बोल रहे हैं कि आपने इसको हराया, आपने उसको हराया। मैं पूरी हमसे ज़्यादा पूरे इंडियंस जानते हैं कि जाहिर सी बात है कि 10 प्लेयर से जीतना, वो भी क्वार्टर फाइनल का मैच, जो कि वहीं से हमारे सपने टूट जाते हैं, वो मैच जीतना, वो भी गोरों के खिलाफ, तो वो मैं बोलूँगा कि गोरों के खिलाफ, हाँ ये बहुत सही है, मतलब 3 गुना लगान जो उस लगान तो अलग बात है कि इनका लास्ट टाइम भी हम लोगों ने क्वार्टर फाइनल में हराया, और उसके बाद क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया को मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को भी हराना बड़ी बात होती है, हम लोगों ने चलो ठीक है क्योंकि वो फुल का मैच था, लेकिन जो डू एंड डाई मैच होता है वो क्वार्टर फाइनल का मैच होता है। अगर उसमें आप इनको हराएं, वो भी रेड कार्ड हमें देने के बाद भी, अगर हम 10 प्लेयर से खेल रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। और मैं सबको इसमें धन्यवाद बोलना चाहूँगा देशवासियों का, जिन्होंने हमें वहाँ से बैठ के सपोर्ट किया, और एज अ टीम यहाँ पे जितना हम लोगों ने एक साथ अपनी यूनिटी दिखाई, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। वो मैच मेरा कभी नहीं बोल सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात बोले ललित, बहुत आभारी हम ब्रेव से बात करेंगे। थैंक यू सर। दीपा जी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बैक टू बैक मेडलिस्ट ओलंपिक में। हालांकि कलर चेंज करने की बात हो रही थी पहले, बट फिर भी बैक टू बैक मेडलिस्ट ओलंपिक का, तो सोच बताइए कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, बैक टू बैक मेडल जीतना एक कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और हमारा यही एम था इस बार कलर चेंज करना, बट स्टिल जैसे टीम खेली हमारी अच्छी खेली है, हमने इतिहास चेंज किए हैं, इधर आके ऑस्ट्रेलिया को 52 ईयर के बाद हमने हराया है, फिर उसके बाद 1 मैन लेस 43 मिनट हम जीबी को ड्रा करके वो शूट आउट पे जीतना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। तो एक अच्छी जो एकता थी हमारी टीम में, हमारा यही था कि लास्ट टारगेट जो ब्राउन्स का था, सीरीज के लिए जीतना है, इंडिया के लिए जीतना है, तो वो बेस्ट रहा हमारा। ये मैच के पहले जो सेमीफाइनल हारने के बाद, ये मैच के पहले जो प्रिपरेशन के बारे में क्या चल रहा था ड्रेसिंग रूम में, ये बताइए थोड़ा। कुछ नहीं, बस यही सभी एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे कि चेन अप, हमारे पास लास्ट चांस है, ये जीत के मेडल जीतना है, जो मेन ये टारगेट था कि जीतना ही है जो मर्जी हो जाए, तो यही मेन था कि ब्राउन्स ही होता है, तो फाइनली वो जीते हैं, बहुत खुशी की बात है। श्रेयस का साथ आपका बहुत ही लंबा टाइम खेल रहे हैं एक साथ, तो क्या बोलना चाहेंगे उनको? बिल्कुल, मैं सबसे पहले बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि 12-13 साल मैं पाजी के साथ खेला हूँ, बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। वॉल ऑफ इंडियन हॉकी वो हमेशा रहेंगे, ठीक है जी। तो बाकी यही है कि थैंक यू सो मच पाजी को बोलता हूँ। हरमनप्रीत सिंह कैप्टन के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, हरमन काम कैप्टन है, गुड कैप्टन है, बेस्ट है, की प्लेयर है, स्कोरर है, जब भी टीम को जरूरत होती है वो गोल निकालता है हमारे लिए, तो बेस्ट है जी। एंड फाइनल वन सेलिब्रेशन का क्या सोचे हैं आप? अभी पहले मेडल पहनेंगे, उसके बाद देखेंगे। थैंक यू सो मच। शिवेंद्र भाई, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर से एक बार ब्रॉन्ज मेडल आ गया है पोडियम पे इंडियन टीम, क्या कहोगे आज? वैसे उम्मीद हमें गोल्ड की थी, हमने जिस हिसाब से प्रिपरेशन किया था, टीम की फॉर्म जिस हिसाब से थी, मैं पूरी उम्मीद थी कि हम लोग गोल्ड मेडल मैच खेलेंगे, मगर कहीं नहीं, हम खाली हाथ वापस नहीं जा रहे हैं, हमसे ब्रॉन्ज मेडल लेके जाएंगे। बैक टू बैक मेडल जीतना भी एक बहुत बड़ी बात होती है ओलंपिक जैसे इवेंट में, और कहीं ना कहीं हॉकी का वापसी हो रही है पूरे अपने कंट्री में, हॉकी वापस आ रही है। माहौल कैसा था जब जर्मनी के साथ सेमीफाइनल में हार गए थे? क्या माइंडसेट से आज, मतलब एक दिन का गैप भी था, तो क्या चल रहा था टीम में? कहीं ना कहीं सेटबैक था हमारे लिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी टीम चल रही थी, परफॉर्मेंस जा रही थी हमारी, जो हमारी टीम की बॉन्डिंग थी वो बहुत हाई लेवल पे थी, और हमने सोचा हुआ था कि फाइनल खेलना ही खेलना है। जहाँ हमें उस मैच में हमें जब हार मिली तो धक्का भी लगा, मगर सब प्लेयर्स अच्छे, हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, और वो पिछले ओलंपिक में सेमीफाइनल खेल चुके थे, ये चीज़ को फेस कर चुके थे, तो उनको वापस आने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, और एक टीम उभर के वापस आई, और इस मैच को हमने वापस मेडल जीत के दिया।
श्रीजीत रिटायरमेंट ले रहा है, उसके बारे में कुछ? इसका जैसे करियर मतलब गोल कीपर मिलना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। उसने उसको मेडल दे के उसकी रिटायरमेंट को हमने पूरा किया। हमारे पास लड़कों का एक ही टारगेट था, बस ये लास्ट मैच सीरीज के लिए खेलना है, क्योंकि उसका लास्ट मैच है तो उसके लिए मेमोरेबल था। लास्ट सवाल, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत बड़ा है, लेकिन भारत को अगर गोल्ड जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? कहीं जो हमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक की हैं, जो मेंटली हैं, फिजिकली, और जो हमारे गोल स्कोरिंग थी उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारी मिसिंग हुई है लास्ट चांसेस में, वो थोड़ी कम करते तो मे भी शायद हम लोग फायर कर। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए।